Topic of today is urinary system in man. यानी मैन में एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम किस तरह वर्क करता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और डिजीजेज उसकी बाद में डिस्कस करेंगे। जो एबनॉर्मेलिटीज हैं इससे मतलब वो बाद में नेक्स्ट चैप्टर में होंगी, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे होंगी। यूरिनरी सिस्टम इन मैन, a pair of kidneys consist of millions of functional units, nephrons. नेफ्रॉन्स जो हैं वो मिलियंस में किडनीज में होते हैं। द नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाया द renal arteries which leave each kidney via the renal vein. The function of kidney and blood in clearing wastes is very evident from the fact that weight of kidneys accounts for less than 1% of the total body weight, while receive 20% of blood supplied with each cardiac beat. हर कार्डिक बीट के साथ ब्लड सप्लाई किया जाता है। 20% ऑफ द बॉडी blood is supplied towards the kidney following filtration of blood and further processing through tubular system. Urine is collected in a central cavity of the kidney pelvis. सेंट्रल कैविटी जो किडनी की होती है उसे पेल्विस कहते हैं। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड यूरेटर. Ureters of both the kidneys drain into urinary bladder through urethral orifice. Urethral orifice. Urine leaves the body during urination from the bladder through a tube called the urethra, which empties near the vagina in females or through the penis in males. तो ओपनिंग यूरिनरी ट्रैक की मेल्स में पेनिस और फीमेल्स में विजाइना के पास एम्प्टी होती है। स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को कंट्रोल किया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्फिंक्टर मसल्स. नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन के बारे में अलग से डिटेल है. द फंक्शनल यूनिट्स nephrons in human kidneys are arranged along two distinct regions, an outer cortex and an inner medulla. किडनी में आउटर रीजन को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं. द नेफ्रॉन्स अरेंज्ड along the cortex are called as cortical. However, these arranged along the border of cortex and medulla with their tubular system looping deep in inner medulla or juxtamedullary nephrons. inner medulla में जो nephrons हैं उन्हें कहते हैं juxtamedullary nephrons और cortex region में जो nephrons होते हैं वो कहलाते हैं cortical nephrons. Juxtamedullary nephrons are instrumental in the production of concentrated urine. In each nephron inner end forms a cup-shaped swelling called Bowman's capsule, and it is around a ball of capillaries called glomerulus. Glomerulus capillaries होती हैं Bowman's capsule के पास. Glomerulus circulates blood through capsule as it arrives through afferent arteriole and leaves the capsule by efferent arteriole. और ये कैपिलरीज कैप्सूल को लीव करती हैं इस पार्ट को थ्रू efferent arteriole. The blood vessel subdivides again into another network of capillaries called peritubular capillaries. Bowman's capsule continues as extensively convoluted proximal tubule loop of Henle and the distal tubule which empties into collecting tubules. Collecting tubules जो हैं वो हर किडनी में होती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हर किडनी से फिर ओपन होती हैं इनटू द पेल्विस. द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस passes through these structures and is processed ultimately for urine formation. फिर ये जो फिल्ट्रेट है जो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में बनता है वो फिल्ट्रेट से फिर यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर यूरिन फॉर्म होता है. The peritubular capillaries intermingle with proximal and distal tubules of the nephron. In juxtamedullary nephrons, additional capillaries extend down to form a loop of vessels called vasa recta. Loop of vessels जो loop of Henle के पास है, loop of vessels उसे vasa recta कहते हैं.
और ये जो नेफ्रॉन है, हर नेफ्रॉन के 3 बेसिक फंक्शंस हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन, blood passing through glomerulus is filtered into Bowman's capsule. ब्लड में से फिल्ट्रेट वेस्ट मटेरियल का फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में आ जाता है. It is specifically filtered here, unlike at the end at the other parts of the vessels, because glomerulus walls are porous and the fraction of the blood pressure reaching here provides the filtration pressure. Filtration pressure एक ग्लोमेरुलस में डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल में आ जाता है. The filtrate appearing in Bowman's capsule is called as glomerular filtrate, which contains numerous useful substances such as glucose, amino acids, salts in aqueous solution. पानी के साथ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस भी इस फिल्ट्रेट में होती हैं और इनकी फिर रीअब्जॉर्प्शन, जो बॉडी को जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होती है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होकर वो बॉडी में एंटर हो जाती है. ऑल द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट are reabsorbed in proximal tubules, and when filtrate leaves proximal tubules it mostly contains nitrogenous wastes. और proximal tubule से जो filtrate leave वो आउट करता है उसमें नाइट्रोजनस मैटर होता है. सिक्रीशन भी नेफ्रॉन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है. The tubular epithelium also secretes substances into the lumen. This secretion is very selective and is mainly of hydrogen ions to balance pH value of the filtrate passing through the tubule. तो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल से जो फिल्ट्रेट पास कर रहा होता है उसके पीएच बैलेंस के लिए हाइड्रोजन आयन जो हैं वो सिक्रीट होके ट्यूब्यूलर एपिथेलियम से ल्यूमन में आ जाते हैं. ल्यूमन स्पेस है ट्यूब्यूल्स की, उसमें हाइड्रोजन आयंस एंटर हो जाते हैं. इस तरह पीएच वैल्यू फिल्ट्रेट की नॉर्मल और ठीक रहती है. ये नेफ्रॉन दिखाया हुआ है. नेफ्रॉन देखें गर्ल्स, ये नेफ्रॉन देखें गर्ल्स, अगला पेज का नेफ्रॉन दिखा. ये नेफ्रॉन आ गया गर्ल्स आपके सामने. क्लियरली नेफ्रॉन की शुक्र है पिक्चर जो है वो आ रही है. नेफ्रॉन विद वेस्कुलर सप्लाई, नेफ्रॉन और उसके इर्द गिर्द वेस्कुलर सप्लाई भी दिखाई हुई है. ग्लोमेरुलस जो स्टार्ट में बोमेंस कैप्सूल के साथ है वो क्या है, एक कैपिलरी सी का नेट सा है जिसमें एफ्रेंट आर्टीरियोल एंटर होती है और इफ्रेंट आर्टीरियोल उसको लीव आउट करती है. फिर एक लूप सी है ट्यूब्यूल की, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स की, उसके उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और उसमें डिस्टल ट्यूब्यूल है. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी कैपिलरीज हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी कैपिलरीज हैं और लूप जो है उसके इर्द गिर्द भी कैपिलरीज हैं. लूप ऑफ हैंडल की ट्यूब्यूल का डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है और इन दोनों लिम्ब्स के इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्हें वासा रेक्टा कहते हैं. और ये सारी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओपन होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट फिर सारे नेफ्रॉन्स की ये डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होती हैं यूरिटर में और यूरिटर्स दोनों किडनीज की ओपन होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर फिर एक्सक्रीटरी ओपनिंग से यूरिन को पास आउट कर देता है. टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है मैन का. और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का क्या लेवल है, किस तरह से होती हैं. इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी. वाटर कंजर्वेशन भी बॉडी के लिए जरूरी है. दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स. काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म की वजह से वाटर कंजर्वेशन पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में. In the sufficient or excess supply of water, reabsorption of water from the filtrate is reduced specifically due to inhibition of release of antidiuretic hormone. फिल्ट्रेट में वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब उसकी कम हो जाती है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर की रुक जाती है अगर एंटीडायूरेटिक हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट कर दिया जाए तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता. एंटीडायूरेटिक हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोस्मोटिक बॉडी फ्लूइड्स.
तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर रिलीज नहीं होगा, इसकी रिलीज इनहिबिट होगी, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो जाएगी. दिस रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन कॉजेज लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन. और रीअब्जॉर्प्शन अगर रिड्यूस होगी तो लार्ज वॉल्यूम वाटर की डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगी. Mammalian kidney, including human, is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate. Mammalian kidney, including human, is adapted to conserve water by 99.5% reabsorption of glomerular filtrate. इस तरह से water conserve होता है. The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part. किडनी का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें ग्रेजुअल कंसंट्रेशन डेवलप होती है कॉर्टिकल साइड से यानी कॉर्टेक्स की तरफ से मेडुला की जानिब. Thus inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through a mechanism of counter current multiplier. इस तरह यूरिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल जो है सही रखने के लिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म वर्क करती है. दिस मैकेनिज्म कॉजेज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर from the filtrate back to the kidney as it passes downward in the descending loop of Henle. Descending loop of Henle में जब यूरिन पास करता है तो वाटर का ऑस्मोटिक आउटफ्लो जो है फिल्ट्रेट से यानी पानी वापस इस मैकेनिज्म की वजह से बॉडी में एंटर हो जाता है. Furthermore, ascending loop of Henle does not allow outflow of water from the filtrate. जबकि ascending loop में इस तरह रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती. Instead, actively transport sodium ions into the kidney interstitium to sustain its high concentration. और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन भी बॉडी में नॉर्मल रखने में ये सिस्टम ये मैकेनिज्म वर्क करती है. फिर हार्मोन लेवल सही होना चाहिए, उससे भी यूरिया ठीक पास आउट होता है. हार्मोन्स के बारे में आप देखिए, द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन दी ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन है इम्पोर्टेंट जो किडनी की फंक्शनिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करने के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन सिक्रीट होता है और ये इसकी वजह से सोडियम का एक्टिव अपटेक पॉसिबल होता है. द अदर साइट इन द नेफ्रॉन where reabsorption of water takes place is collecting tubules. The other site in the nephron where reabsorption of water takes place is collecting tubules. दूसरी साइट जहाँ जो है वो collecting tubules है जहाँ वाटर की reabsorption होती है. ADH यानी antidiuretic hormone released from the posterior pituitary lobe acts to actively transport water from filtrate in collecting tubules back to kidney. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से किडनी की तरफ बैक जो होती है ये एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से होती है जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो सिक्रीट करता है. इसकी वजह से जो वाटर आइंस की फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन है वो पॉसिबल होती है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बैक टू द किडनी. ओके गर्ल्स, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ टुडे. ये नेफ्रॉन आपने देखा, किडनी सिस्टम सारा, ये किडनी अलग से एक क्लियरली दिखाया था आपको जिसका कॉर्टेक्स है, मेडुला है, रीनल हाइलस है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, रीनल पेल्विस है और यूरिटर है. ओके, यूरिटर बड़ी कलेक्टिंग डक्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है. पेल्विस जो किडनी की कैविटी है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी जो किडनी की ब्लड वेसल्स हैं, रीनल हाइलस की एक पॉइंट है, मेडुला जहाँ नेफ्रॉन्स होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और कॉर्टेक्स वो पार्ट आउटर जहाँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. रीनल पिरामिड्स जो हैं मेडुला में बने होते हैं, वो आप देखोगे रीनल का किडनी का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो रीनल पिरामिड्स कौन से हैं ये क्लियर हो जाएगा. और नेफ्रॉन का अलग से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और वेस्कुलर सप्लाई जो है वो भी दिखाई हुई है. ब्लू कलर से जो ब्लड वेसल्स शो की हुई हैं
उसका मतलब है कि इन वेसल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लड वेसल्स ब्राइट रेड कलर में है इसका मतलब है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके गर्ल्स, नो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। एंड आपने पढ़ा ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और वो भी, और फिर हार्मोन्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, एल्डोस्टेरोन और एडीएच, इनकी फंक्शनिंग आपने देखी कि वो कैसे नॉर्मल यूरिन प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। And next time हम पढ़ेंगे, tomorrow we will learn about kidney as osmoregulatory organ and kidney problems and cures. Kidney as osmoregulatory problem, ये छोटा सा पैरा ये हम देख लेते हैं। The production of varied concentrations of urine depending on the availability of water exhibits clearly that kidney functions as an osmoregulatory organ along its excretory role of nitrogenous wastes. किडनी का इम्पोर्टेंट ऑस्मोरेगुलेटरी रोल है नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने में। किडनी फंक्शन एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन अलोंग इट्स एक्सक्रीटरी रोल, यानी वाटर भी एक्सेस जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। ये इस तरह से ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी कहा जा सकता है किडनी को, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहा जा सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और टुमारो वी विल लर्न अबाउट किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। ओके, अल्लाह हाफिज।